वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो तीन चीजें, पहला फर्स्ट प्रिंसिपली सोचो, सेकंड अच्छा प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज ऐसे करो कि यूजर को जल्दी वैल्यू मिल जाए, और तीसरा जल्दी से जल्दी फीडबैक लो और इटरेट करते रहो। नी बैकग्राउंड टू मूव इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तुम्हें एमबीए नहीं जरूरत है, तुम्हें टेक का एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, तुम्हें क्यूए एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, तुम किसी भी बैकग्राउंड से तुम आर्ट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट जा सकते हो, इकोनॉमिक्स से जा सकते हो, होम साइंस से जा सकते हो, बायोलॉजी से जा सकते हो, केमिस्ट्री से जा सकते हो। You speak of it and you can go into product management. Hi everyone, this is Harsh Goel. I'm back again with yet another amazing video. तो आज की वीडियो में मेरे साथ होने वाले हैं श्रवण टिक्कू. He is currently working as a PM in Byju's. PM stands for Product Manager, those who don't know. And if you are a BTech fresher, you can also apply for such roles like Product Analyst, Associate Product Manager. How can you go into this field if you are both in technical as well as non-technical field? So this can be a role that is perfect for you if you have that product mindset, if you have that skills that are required for product analyst. So don't forget to watch this video to have a complete clarity on what this role is and how you can approach this particular role, what all skills do you need to have. So we have discussed this entirely with Shravan and it has been a really amazing conversation. Like I have enjoyed a lot while having this conversation with him. Also, I would request you to check out other playlists on this channel. If you do like the content, don't forget to subscribe this channel, share it with your friends, and do like this video for more and more such amazing content coming ahead. Harshji, so now moving on to the video. Thank you so much, Shravan sir, for accepting the invitation and coming here. Hey everyone, today I have with me Shravan Ticku. He is currently a product manager at Byju's and he has a diverse experience of working with different firms as a product manager and being in different edtech firms from talking about different firms. So we'll talk with him regarding all his experiences and how he broke into this product field. So बहुत ही amazing conversation होने वाली है. He keeps us engaged on his LinkedIn also with amazing content related to product management, how to break into such roles. So आज की conversation भी basically it will revolve around how freshers can break into product roles and like what you actually need to get into this role. So before starting with the video, I would like to have a brief intro from your end, like something that you would like to say about you. Sure, यार. So I think first of all, Harsh, thank you very much for calling me. मैं हमेशा बहुत खुश होता हूँ talking to youngsters like you who are trying to help other people because that's the core agenda that I have been brought in. Coming from मैं जिस background से आया हूँ ना यार, मैं कश्मीरी पंडित हूँ. मैंने देखी हैं वो difficulties that once you try to grow up in life and fundamentally ये फंडा था यार कि किसी पॉइंट में मैं भी जनता की हेल्प कर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पॉडकास्ट में आने में. अब मेरी जर्नी यार, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल यार, बहुत सेरेंडिपिटी की जर्नी है. तो फंडा ऐसा था यार कि मैं बचपन से बहुत क्यूरियस था. आई वॉज नेवर दिस चैप. घर वाले हमेशा बोलते थे यार पढ़ाई कर ले, बट मैं वैसे कभी नहीं करता था, राइट. एंड अगेन मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई कर लो मेरी तरह मत करना भाई, ठीक है. तो फंडा ये था यार, 8th क्लास से ही मेरा इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स फील्ड्स में था कि मैं इजिप्शियन माइथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं रिलीजन पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं म्यूजिक पढ़ रहा हूँ. तो यार हमेशा से ये एक फंडा था यार कि स्ट्रक्चर्ड वे से ज्यादा ना थिंकिंग ओरिएंटेड चलना है लाइफ में, कि यार कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट. फिर फाइनली क्या हुआ, घर वालों के प्रेशर में धक्का दे के उन्होंने मेरे को किसी तरह आईआईटी भिजवा दिया, ठीक है. अब जब मैं आईआईटी गया तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि मैं अपनी इंजीनियरिंग से कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, ठीक है. तो मेरे को रियलाइज हुआ यार कि मुझे करना तो कुछ हो रहा है और मैं अब लाइफ में वो डिसीजन नहीं लूंगा कि यार कि घर वाले जो बोल रहे हैं या फिर इफ 100 पीपल आर सेइंग समथिंग इट इज सपोज टू बी राइट. इस कॉन्सेप्ट को कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है कि हमें क्या बोलते, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे भाई तू आईआईटी चला जा, तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी. ऐसा होता नहीं है भाई. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. तो फंडा क्या हुआ, सेकंड ईयर में यार ऐसा सीन हुआ कि मेरे कुछ दोस्त थे कंप्यूटर साइंस के और एंड्रॉइड तब नया था. तब 2012 की बात कर रहा हूं मैं, और 2012, हाँ मैं उतना पुराना हूं यार, मतलब आई एम दैट ओल्ड. So but then again, तो 2012 में हमने सोचा यार कि we wanted to solve a problem. तो फंडा क्या था कि यार हम हमेशा दिल्ली से रुड़की आते थे, सॉरी रुड़की से दिल्ली आते थे, उल्टा बोल दिया, हाँ रुड़की से दिल्ली आते थे. तो क्या होता था यार कि हम काफी घूमने जाते थे तो हमें ठुल्ले पकड़ लेते थे. ठुल्ले बेसिकली मीन्स पुलिसमैन, राइट. So lot of times we used to get चालान, हमें चालान हो जाता था हमारा. अब चालान होने के साथ हमने सोचा यार कि पैसे तो वैसे ही घर वाले कम दे रहे हैं, अब इसी में सब उड़ा देंगे तो हम क्या एंजॉय करेंगे. तो हमने क्या, मेरे दो दोस्तों के मिलकर हमने क्या किया, हमने कहा यार एक ऐप बनाते हैं. और एंड्रॉइड तब बहुत नया था, ठीक है. और ऐप क्या था कि हमने बोला था यार कि कॉप की लोकेशन रियल टाइम में तुम पिन कर सकते हो. जैसे गूगल आज पिन करने देता है ना, तुम एक उसकी लोकेशन पिन कर सकते हो. तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त बोल रहा है भाई यहाँ इस गली से मत जाना, यहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा है. तो हमने वो बनाया और हमने कभी नहीं सोचा था यार, सेरेंडिपिटी थी, कभी नहीं सोचा था कि यार कि ये पॉपुलर होगा. तो हमने कहा ये 300-400 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कॉलेज के लॉन्डो में तो काम आ जाएगा.
हमने इसको प्ले स्टोर पे डाल दिया, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ तब प्ले स्टोर एनालिटिक्स था भी नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी कि गूगल तुम्हें ये बताए कि तुम्हारे ऐप डाउनलोड कहां से हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 2-3 महीने हम उसको यूज कर रहे हैं, 3 महीने बाद हमें रियलाइज होता है साले के इस ऐप के 3 लाख डाउनलोड हो गए, और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोल रहा हूँ यार कि ये 3 लाख डाउनलोड हुए कहां से। अब मैं गूगल को एक मेल किया, तो गूगल मेरे को 15 दिन के बाद रिस्पॉन्ड करता है कि तुम्हारा जो ऐप है ये एरिजोना यूएस से डाउनलोड हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई जनता को, यार ये क्या हो रहा है भाई, जनता यूएस में डाउनलोड कर रही है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कई बार ऐसा होता है कि वन ऑफ द फंडामेंटल लर्निंग्स दैट आई हैड वाज कि प्रॉब्लम जरूरी नहीं होता तुम्हारे साथ होती है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम कैन बी फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूजर्स, राइट, व्हिच यू डोंट रियलाइज, राइट। सो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम काफी बड़ी, और उसके 2 महीने बाद देयर वाज अ लार्ज अमेरिकन सिक्योरिटी फर्म जिसने हमें रीच आउट किया, कहा कि हम तुम्हारा ऐप खरीदना चाहते हैं, और हमने वो ऐप 30-40 हजार डॉलर में बेच दिया। और मैं बता रहा हूँ आज से 10 साल पहले की बात, $40,000 उस टाइम पे इतने पैसे थे कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि करना क्या। तो यार उस टाइम पे ये रियलाइजेशन आई कि यार अगर लाइफ में तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट, सो दिस इज द लाइफ दैट आई वांट, this is exactly what I want to do in my life, right? And instead of going into hardcore engineering or doing something else, but ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। 4th ईयर में किसी ने मुझे एक किताब पकड़ाई, उस किताब का नाम है इंस्पायर्ड बाय मार्टी कैगन। मार्टी कैगन इज वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट मैनेजर्स। तो मेरे को उस टाइम में पता चला यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट कुछ तो सिमिलर है यार इस चीज के। उस टाइम भी कुछ पता नहीं था, 4th ईयर में भी मतलब सिर्फ लग रहा था कि यार ये कुछ तो सिमिलर है। तो मैंने कहा यार ये करते हैं, ये लाइफ में करते हैं। मैं तो घर वालों ने बोला एमबीए करो, मैंने बोला नहीं करना। उन्होंने बोला कुछ और करो, मैंने बोला नहीं करना। मैंने बोला यही करूंगा। तो फाइनली मेड दैट कॉल, जॉइंट फ्लिपकार्ट में 6-8 महीने बिताए, और बहुत समय मैं प्रोडक्ट टीम के साथ कॉन्शियसली बिताता था। तो मेरा बॉस हमेशा मुझसे पूछता रहता था यार अबे तेरा काम तो एनालिटिक्स में है, तू प्रोडक्ट टीम के साथ करता क्या रहता है। तो मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता था कि यार ये स्केल पे फीचर्स कैसे बनाते हैं, कि 100 मिलियन यूजर्स के लिए कि कोई बटन अगर यहां से यहां मूव करना है, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, मतलब हाउ डू यू मेक दैट चॉइस, राइट। तो मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया, कुछ जानने की कोशिश की, और मुझे एक चीज पता चली कि यार कि वी ट्राई टू टैप इनटू कंज्यूमर साइकोलॉजी, कि एक यूजर के लिए सिंप्लीफाई कैसे करोगे। और मुझे ये चीज बार बार रियलाइज होती थी कि यार मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। फाइनली फ्लिपकार्ट के बाद आई मूव टू अनदर फर्म व्हिच इज कॉल्ड ब्लैकबक। आज वो $1 बिलियन कंपनी है। दैट वाज मोर लाइक एन उबर फॉर ट्रक्स। तो वहां पे मैंने उनके प्राइसिंग ऐप पे काम किया, तो समझ में आया कि ट्रकर की लाइफ क्या होती है। बहुत समय ट्रक वालों के साथ बिताया, तो बहुत मजा आया उस टाइम पे। ये समझ में आया कि यार तुम बिल्कुल ही अलग तरीके के कोहर्ट, जैसे हम कभी सोचते ही नहीं, हमारी लाइफ है कि हम घर पे रहते हैं, वो लोग ऑल द टाइम ट्रैवल करते रहते हैं। फाइनली उसके बाद उस ऐप के बाद आई मूव टू मैजिक ब्रिक्स में मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ काम किया, ओनर्स के साथ काम किया, तो एक अलग साइकोलॉजी समझ में आई। और फाइनली लास्ट 3 ईयर से मैं एजुकेशन में हूँ। पहले 2 साल मैंने अपस्किलिंग सेगमेंट के लिए काम किया, जहां हम एआई, डेटा साइंस और इस तरह के कोर्सेज बेचते थे। एड्यूरेका में, जहां पे मैं सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर था, उनके लिए मैंने काफी कुछ डिजाइन किया और इवेंचुअली उनके बिजनेस को भी लीड किया। और अभी मैं बायजूस में आई वर्क एज ए प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर, जहां पे मैं बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाता हूं, जो कि एक अलग ही लर्निंग है। क्योंकि जो तुम और मैं बहुत ही कॉमन लेके चलते हैं ना कि यार जूम तो चला ही लेंगे, बच्चों को वो समझ में नहीं आता। तो बहुत मजेदार चीज है। इफ यू लुक एट इट द राइट वे, इट्स अ गेम ऑफ, इट्स मोर देन टेक, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। हाउ डू यू बिल्ड थिंग्स which are of value to the user। तो वो चीज करने लगा, और ये मेरी जर्नी 6 साल की, मुझे इट हैज इवॉल्व्ड मी एज अ थिंकर। क्योंकि अब मैं अपने आप को एक यूजर के शूज में रख के सोच सकता हूं कि यार कि ये चीज मुझे तो अच्छी लगती है, क्या उसको अच्छी लगेगी। और ये एक बहुत हार्ड स्किल सेट है। तो ये 6 साल में यही काम किया, और फाइनली अब तो तू बाकी तो जानता ही है यार कि मैं लिंक्डइन पे कुछ कुछ करता रहता हूं। उसका भी रीजन एक बहुत फंडामेंटल था कि यार बहुत सारा जार्गन था लिंक्डइन पे, बहुत सारा जार्गन था, जिसको मैं सॉल्व इसलिए करना चाहता था क्योंकि जो चीजें सिंपल नहीं होती ना यार, उन चीजों को समझना ना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो मैंने सोचा यार कि 2 सबसे आसान तरीके हैं जिससे इंसान सीख सकता है। एक होता है कि हंसना सबको पसंद है, और दूसरी चीज साइमल्टेनियसली ये है कि अगर तुम फंडामेंटली सिखाओगे तो वो भी मजा आता है। तो इन दोनों को मर्ज करके मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं तुम सब लोगों के लिए। तो यार यही मेरी छोटी सी जर्नी है 6 साल की, और अब मैं मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर कन्वर्सेशंस इन द फ्यूचर। या ग्रेट। बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस विद डिफरेंट फर्म्स दैट यू हैड। तो फाइनली आप ये जर्नी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। बट आई जस्ट वांट टू नो कि like I was exploring this field, product analyst, product management, from quite some time. So what people generally say, the typical definition of a product manager is like he is a cross section of 3 domains, that is UI UX and technology and business. So what according to you, like you have experienced it from the very core, what according to you is
a product manager, and if a person wants to know like whether he's suited to be a product manager, how like when the such thing should come in his mind कि हाँ यार अब मुझे product manager बनने के मैं product manager बनने के लायक हूँ, मेरे में वो skills हैं, तो वो क्या skill Sure. set है that is required for a product Sure. manager? Sure. यार देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना, जितनी भी डेफिनेशंस है कि यू आर एट द इंटरसेक्शन ऑफ यूआई, इंजीनियरिंग और डिजाइन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट आउट, या बिजनेस, ये एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। देखो, जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम्हारी बॉडी, ठीक है, योर बॉडी एज अ कलेक्टिव थिंग इज अ बॉडी। इट्स नॉट लाइक योर हैंड इज अ बॉडी, राइट? योर हैंड इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? तो इसी तरह सोचो कि ये जो पार्ट है ना, कि जहां तुम एक इंटरसेक्शन की तरह एक्ट करते हो, ये भी एक पार्ट है। लेकिन फंडामेंटली तुम क्या हो? हमें पहला सवाल पूछना चाहिए कि प्रोडक्ट मैनेजर है ही क्या? व्हाट इज ही डूइंग, राइट? ये सारी चीजें तो कोई भी कर सकता है ना यार। देखो, अगर तुम कोई स्मार्ट बंदा उठा के ले आओगे, वो इंटरसेक्शन पे आके काम कर लेगा, ठीक है, वो बात भी कर लेगा। अगर तुम एमबीए कॉलेज से बंदा उठा के ले आओगे, वो बात भी करना उसको आता है। फंडामेंटली तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर, तुम एक यूजर के लिए तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अब एक टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्वर और एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अंतर क्यों है? ये दो शब्द ही अलग क्यों है? मैं प्रोडक्ट मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों नहीं बोल सकता? यहां पे अंतर है, क्योंकि इफेक्टिवली हलवाई भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना यार, तुम मिठाई ले रहे हो उससे, राइट? तो क्या वो एक प्रोडक्ट मैनेजर है? क्या तू कल को हलवाई के पास जाके बोलेगा भैया आप तो प्रोडक्ट मैनेजर हो? ऐसा नहीं हो, राइट? प्रोडक्ट मैनेजर और एक टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्वर में एक अंतर होता है, वो फंडामेंटल अंतर है कि प्रोडक्ट मैनेजर प्रॉब्लम्स को स्केल पे सॉल्व करता है। स्केल, अब क्या अंतर है स्केल पे सॉल्व करने का? जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल तेरे को देता हूं। कल को अगर तुझे ये सोचना है कि ओला या उबर फॉर एग्जांपल, फंडामेंटली वो क्या है? वो एक एक्सेल शीट ही तो है। एक तरफ गाड़ियां हैं, एक तरफ लोग हैं, उनको इफेक्टिवली तुम मैच कर रहे हो। तुम बोल रहे, एक गाड़ी बोल रहा है कि भैया मुझे यहां से यहां जाना है, तुम बोलते हो भैया मैं इतने पैसे लूंगा, और एक डील हो जाती है, ठीक है? ये अर्श या श्रवण 5,000 लोगों के लिए कर सकता है अगर वो बहुत स्मार्ट है, 10,000 के लिए कर सकता है अगर हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, राइट? लेकिन अगर मैं यही सवाल तुझे बोलूं कि ये अब 50 मिलियन लोगों के लिए करना है, तो गेम ही बदल जाती है। तब ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन नहीं रहती, तब ये मल्टी वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि तुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस सिटी में स्ट्राइक तो नहीं है, बारिश तो नहीं पड़ रही, डिमांड तो नहीं है, यहां पे कोई क्राइम रेट ज्यादा तो नहीं है। तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि स्केल पे जो सिंपल सी प्रॉब्लम है कि गाड़ी और एक इंसान को जोड़ना, वो एट स्केल बिकम्स हाईली डिफिकल्ट। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स आते हैं। वो सोचते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो कि स्केल पे भी काम करे, लेकिन एक इंडिविजुअल यूजर की वैल्यू डिमिनिश नहीं होनी चाहिए। जैसे उसका भी मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान ले तो अमेजॉन पे जाता है, अमेजॉन पे 200 मिलियन यूजर्स आते हैं, लेकिन तेरा डेटा तो यूनिक है ना। कल को अगर तू अपने वेब पेज पे जाता है और तुझे कुछ रैंडम ही डेटा दिखने लग जाता है, मान ले तेरे को अचानक से कोई पैराग्लाइडिंग की चीजें दिखाने लग जाता है अमेजॉन, तू बंद कर देगा यार। यू विल से कि व्हाट, दिस इज नॉट इवन रेलेवेंट टू मी। सो फंडामेंटली तेरी वैल्यू डिमिनिश नहीं हुई, लेकिन ये सोल्यूशन स्केल पे भी काम कर गया, राइट? तो एक प्रोडक्ट मैनेजर कोशिश ये करता है कि एक इंडिविजुअल यूजर को उतनी ही वैल्यू मिले, अगर वो 500 के लिए कर रहा हूं, 5,000 के लिए कर रहा हूं, या 50 मिलियन के लिए कर रहा हूं, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं ऐसे सॉल्यूशंस कैसे डिवाइस करूं? How do I devise these solutions? This is the fundamentally definition of a product manager, a problem solver, but at scale. That is the fundamental definition. उसके बाद होता है, अब तूने मुझसे सेकंड सवाल पूछा यार कि क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, ठीक है? यार देखो, बहुत सारे स्किल सेट्स है जो मार्केट में बात करते हैं, जो कि तुम्हें यूएक्स आना चाहिए, तुम्हें यूआई आना चाहिए, तुम्हें टेक आना चाहिए, तुम्हें बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगेन, ये एस्पेक्ट्स है, लेकिन ये कहां से ओरिजिनेट करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं कि तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम एक अच्छे थिंकर हो। थिंकर का क्या मतलब होता है? कि तुम फर्स्ट प्रिंसिपल ही सोच रहे हो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुझे एक बेड खरीदना है, मान ले तू अर्बन क्लैब से तुझे बेड खरीदना है, ठीक है? अर्बन क्लैब कितना भी बड़ा सिस्टम है, जो भी है, फलाना है, जो भी है, या किसी भी वेबसाइट से खरीदना है, तू बोलता है मैं एक बेड लेता हूं। अचानक से एक दिन तेरे पास बेड आता है, बहुत सुंदर बेड है, लेकिन बेड के बीच में होल है, तू क्या करेगा? तू वापस दे दे। तू बोलेगा यार मैं तो सो ही नहीं सकता इस पे, I cannot sleep on this. On the contrary, Urban Clap sends you a very normal bed, right? But it is a very smooth bed and you can sleep on it. तो क्या है, तेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि मुझे कोई चीज चाहिए जिसपे मुझे सोना है, आई कैन स्लीप वेरी कॉन्शियसली। यानी कि तू एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर, फर्स्ट प्रिंसिपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो एक हाइपोथेसिस से ओरिजिनेट करती है कि यार आई नीड अ थिंग टू स्लीप ऑन कंफर्टेबली, राइट? सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये एक फंडामेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। कि जैसे अगर मुझे एक मार्केट प्लेस बनानी है कुत्तों की, कि यार हाउ टू सेल पेट्स,
राइट? तो यू वुड फर्स्ट थिंक कि यार मैं सेलिंग पेट्स मेरी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. इट इज सॉल्विंग 2-3 थिंग्स. वन, स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है. सेकंड, इट इज ऑल्सो गिविंग लाइवलीहुड टू अ लॉट ऑफ पेट्स जो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हंगर, राइट. थर्ड थिंग होती है कि इट ऑल्सो मेक्स द इकोसिस्टम वे मोर एनिमल फ्रेंडली, राइट. तो ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सोच रहा है इनके बारे में, एंड देन यू आर डिवाइजिंग अ सोल्यूशन. अब क्या हुआ, तूने सोल्यूशन डिवाइस कर लिया, देन कम्स द सेकंड स्टेप कि अब इस सोल्यूशन को अगर मुझे 5 करोड़ के लिए करना है तो क्या ये स्केलेबल है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं तुझे बोलूंगा यार एक कैनल खोल दे हर जगह, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना बनाना. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बोलूं कि यार कि कुछ ओनर्स हैं पेट्स के जिनको पेट्स अच्छे लगते हैं, मैं उनसे मैच करा देता हूं, वो तो दुनिया भर की ऑडियंस है, तो वो एक बेटर सोल्यूशन है. तो तुम क्या करते हो कि पहला तुम अपने आप को इंप्रूव करते हो, क्या मैं एक अच्छा थिंकर हूं, क्या मैं एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर हूं. फर्स्ट प्रिंसिपल का अगेन मतलब होता है फंडामेंटल चीज जो चेंज नहीं होती, जैसे दिल का धड़कना चेंज नहीं होता. दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है. सेकंड थिंग क्या होता है? सेकंड थिंग हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि एक अच्छा पीएम वही होता है जो कि प्रायोरिटाइज अच्छा कर सके. बहुत सारे बोलते हैं कि तुम्हारा प्रायोरिटाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन होता क्या है फंडामेंटली भाई? कि प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसको तुम जानते नहीं हो, वो इंसान तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देता वैल्यू डिस्कवर करने के लिए. मान ले तू क्लियर ट्रिप पे जाता है और क्लियर ट्रिप पे तुझे 30 मिनट लगते हैं फ्लाइट बुक करने में, तू जाएगा अगली बार? नहीं जाएगा. यू विल नेवर गो टू क्लियर ट्रिप. बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट टेक्स यू 30 सेकंड्स. या तो उबर का ऐप खोलता है और तुझे गाड़ी 40 मिनट में तू बुक होती है, कभी नहीं खोलेगा. तो यानी कि तुम ऐसी चीज करो कि यूजर को बहुत जल्दी पता लग जाए कि मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, what am I getting out of it. So you prioritize those things, you build those things जिससे उसको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट मुझे क्या दे रहा है in the first 30 seconds. अब ये जब तुम स्ट्रक्चर सोचते हो, जब यूजर के लिए सोच रहे हो, तो फीचर्स के लिए भी वही सोचोगे कि यार ये फीचर सबसे ज्यादा वैल्यू देगा. तो इसीलिए एक प्रोडक्ट मैनेजर हमेशा यूजर के शूज में जाके सोचता है कि मुझे पहले क्या बनाना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चल जाए, सबसे इजीली पता चल जाए. दैट्स द सेकंड थिंग. और थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि क्या तुम एक्सेसिबल हो, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो यार. इट्स अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम. बिल्डिंग अ बिजनेस इज नॉट लाइक सॉल्विंग 2+2. इट हैज सो मेनी वेरिएबल्स. तुम्हारे पास फंडिंग है, तुम्हारे पास लोग हैं, डिमांड है, तुम्हारे पास सप्लाई है. तो तुम क्या करते हो, तुम हमेशा बोलते हो कि यार मैं अपनी थिंकिंग पे उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, मैं कलेक्टिव थिंकिंग, अपने यूजर्स की थिंकिंग पे ज्यादा वैल्यू कर रहा हूं. तो वो कैसे हो सकता है कि जब तुम अपने यूजर के साथ एक्सेसिबल और उनसे फीडबैक लेते रहते हो, और जब फीडबैक लेते हो ना, फीडबैक तुम्हें भी इंप्रूव करता है एज अ थिंकर, तुम्हारे प्रोडक्ट को भी इंप्रूव करता है, और तुम्हारे हाइपोथेसिस को भी इंप्रूव करता है कि यार क्या मेरा प्रोडक्ट एक्चुअली वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा. तो 3 चीजें. पहला, फर्स्ट प्रिंसिपली सोचो. सेकंड, अच्छा प्रायोरिटाइज करो. प्रायोरिटाइज ऐसे करो कि यूजर को जल्दी वैल्यू मिल जाए. और तीसरा, जल्दी से जल्दी फीडबैक लो और इटरेट करते रहो. जब तुम करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जहां पे 70% ऑफ द यूजर्स से यस आई लाइक योर प्रोडक्ट एंड आई वुड वांट टू पे फॉर इट, देन यू आर अ ग्रेट पीएम. देन यू आर अ ग्रेट पीएम, क्योंकि तुमने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना दिया. उसके ऊपर फिर क्या होता है, इन तीनों स्किल सेट्स को इंप्रूव करने के मल्टीपल तरीके. टेक है, कुछ और है, जो भी तुम्हें करना है. तो ये 3 चीजें मैं ढूंढता हूं एज अ पीएम कि अगर किसी को पीएम बनना है तो क्या ये 3 चीजें हैं उस बंदे में. दैट्स द थिंग. Amazing. बड़े ही अच्छे तरीके से like you have concluded with the 3 important things that you should have. मतलब कोई particular skill set नहीं है, but a person should be an overall of all these things that we have discussed. Yes. Okay. So now like I used to get this question a lot of times. Like generally I deal with people who are into software roles and who have done something in software roles, but this product management or associate product management or product analyst, so these roles have come to picture. Like these are some of the highlighted of these are in limelight from past 2 years, and companies Sure. have even started going to BTech colleges and they've started hiring people at very good packages, like very freshers, BTech freshers, for their product analyst role. Then they promote them to associate product manager and the product manager further. Sure. But so is this the right way? Like, is it necessary that a person should pursue his MBA, or he should go through this way, or like if he wants, at the end his goal is to be a product manager, so what Sure. should be his pathway? I would say, is this the right pathway, or he should spend some months in software development, then should switch roles within a software company, or he should pursue an MBA and then go for Sure. the desired role? Yeah. बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा यार तूने. मतलब ये सवाल आई थिंक सबसे ज्यादा सुनता हूं मैं. सबसे पहले यार ये अपने माइंडसेट दिमाग से प्लीज टू योर ऑडियंस, everyone who is listening this, there doesn't have to be any background to move into product management. तुम्हें MBA नहीं जरूरत है, तुम्हें टेक का एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है,
तुम्हें QA एक्सपीरियंस नहीं जरूरत है, तुम किसी भी बैकग्राउंड से प्रोडक्ट, तुम आर्ट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट जा सकते हो, इकोनॉमिक्स से जा सकते हो, होम साइंस से जा सकते हो, बायोलॉजी से जा सकते हो, केमिस्ट्री से जा सकते हो. यू स्पीक ऑफ इट एंड यू कैन गो इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिकॉज अब तुम पूछोगे क्यों भैया ऐसा क्यों है, पर मैंने तो टेक का ही सुना है ज्यादातर लोग. उसका रीजन है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला, एक प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है. तुम्हें एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है. ठीक है. अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं बना रखा लोगों ने. क्या होता है कि एमबीए में क्यों जनता टिपिकली जाती है, क्योंकि एमबीए स्कूल्स के बाद तुम्हारी एमबीए में तुम्हें क्या सिखाया जाता है, तुम्हें केस स्टडी सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सिखाई जाती है ना फंडामेंटली. ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें कुछ और अतरंगी कुछ सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं. उसके बाद एक कंपनी आ रही है, वो तुम्हें बोल रही है मैं तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पैसे दे रही हूं, तो तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो गए भाई. राइट. तो उसी तरह टेक में क्या होता है, टेक में तुम सिस्टम्स बना रहे हो. सिस्टम्स बनाने के बाद तुम सोचते हो अरे यार ये मैंने सिस्टम बनाया, ये तो इस यूजर के लिए बनाया, ये तो मैं भी सोच सकता हूं. राइट. ये तो इसके लिए अलग जनता क्यों है, तो टेक से भी बंदा ट्रांजिशन कर जाता है. लोग ये ऊपर ऊपर से सोचते हैं कि यार शायद टेक ने मुझे एनेबल किया प्रॉब्लम्स इस रोल में मूव करने के लिए, या एमबीए ने मुझे एनेबल किया. लेकिन फंडामेंटली वो ये नहीं सोच पाते कि एक्चुअली वो अपने आप को उस माइंडसेट में डाल दिए कि यार मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स में जाना है तो तुम्हें एक इंटरव्यूअर को क्या दिखाना है कि यार कि मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, यही दिखाना है ना. ये तो नहीं दिखाना, वो उसको तेरी एमबीए की डिग्री से क्या करना है यार. उसको ये देखना कि ये मेरा धंधा अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है कि नहीं बना सकता, यूजर्स के लिए वैल्यू डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता. उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे मैं एमबीए नहीं हूं, आई एम नॉट एन एमबीए, लेट्स क्लैरिफाई दिस टुडे ओनली. ठीक है. तो फंडा क्या था कि तुझे अब ये दिखाना, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत सिंपल अप्रोच ली. मैंने बोला यार अगर मुझे यूजर को, अगर मुझे अपने इंटरव्यूअर को यही दिखाना है कि मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, तो मैं प्रॉब्लम पिक करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम उठा लेता हूं ना. कि अगर किसी इंडस्ट्री में, जैसे स्विगी के लिए अगर मुझे पीएम बनना है, तो फूड इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम उठा लेता हूं जो उन्होंने सॉल्व नहीं की है. जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम थी जो मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि स्विगी से तुम ना एक ऑर्डर में मल्टीपल रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं बुक कर सकते. तुझे बिरयानी और आइसक्रीम मंगानी है तो तुझे अलग अलग जगह से मंगानी पड़ेगी. राइट. लेकिन जब तुम पार्टी में होते हो तो तुम 4 अलग ऑर्डर क्यों करो यार, मैं तो एक ही ऑर्डर करूंगा, मैं सब कुछ एक जगह से मंगाऊंगा. राइट. और तुम्हें 4 अलग बंदों के लिए सोचो. अब तूने ये प्रॉब्लम सोची, तेरे लिए तूने भी फेस की, मैंने भी फेस की. क्या करो, उठो उस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करो, उस प्रॉब्लम का साइज देखो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक डॉक्यूमेंट लिखो और अपने रेज्यूमे के साथ भेज दो. मोस्ट पीपल क्या करते हैं, वो खाली रेज्यूमे भेज देते हैं. अब रेज्यूमे एक एप्लीकेशन के लिए 400 आ गए हैं. अब एक इंटरव्यूअर को क्या देखना, उसको ऐसा देख, उस रेज्यूमे है क्या, फंडामेंटली तुम्हारी थिंकिंग को तो नहीं दिखाता, वो तुम्हारी हाइलाइट्स को दिखाता है कि यार मैंने ये किया है सर, मैंने वो किया है सर, मैंने ये किया है. लेकिन मुझे उससे ये तो नहीं पता चलता कि अर्श सोचता कैसे है, ये श्रवण सोचता कैसे है. बट अब जैसे ही तुम्हारा एक असाइनमेंट इसके साथ चला गया, इससे 3 चीजें पता चलती हैं. पहला, वो बंदा सोचेगा यार इस बंदे ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसको तो मैंने बोला भी नहीं था, तो यानी कि ये बहुत पैशनेट है. तो वो तेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि यार कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इंटरेस्टेड है. सेकंड, वो तेरा असाइनमेंट खोलेगा, अब उसके पास खाली रेज्यूमे नहीं है, तेरा असाइनमेंट भी है, तो ही ऑल्सो नोज हाउ यू थिंक एज अ पर्सन. राइट. बिकॉज अब वो जानता है कि तूने यार 7 पेज लिखे हैं, अर्श या श्रवण ऐसे सोचता है. और अगर वो सोचना उसको अलाइन कर जाता है तो तेरा बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो तुझे बुला लेगा. उससे एक और फायदा भी होता है, जब तू असाइनमेंट बनाता है ना, तो तू कंपनी के बारे में पढ़ता है, तो तुझे प्रोडक्ट के बारे में समझ में आता है. अब जब तुमने एक असाइनमेंट बनाया, ये तुम्हारा, अब तूने ऐसे ही 7-8 असाइनमेंट बनाए, तो तेरा एक पोर्टफोलियो बन जाता है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. अब एक डिजाइनर के पास एक पोर्टफोलियो होता है, मैं हमेशा ये सोचता था टेकी के पास पोर्टफोलियो होता है गिटहब का, ये प्रोडक्ट मैनेजर क्यों नहीं पोर्टफोलियो बनाते यार, वो भी तो वही काम कर रहे हैं. तो मैं अपना पोर्टफोलियो बना के भेजता था. पोर्टफोलियो बनाने से मेरा फायदा भी क्या होता था, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम पे एफर्ट मारता था ना, तो मैं थिंकर भी अच्छा बनता था कि अरे यार मैंने इस प्रॉब्लम में ये गलती कर दी थी, ये मुझे So if you're watching this video now, don't forget to press the subscribe button and share it with the friends. फीडबैक मिला. अभी क्या होता है, रेज्यूमे तुम भेजते हो, उसके बाद 400 रेज्यूमे आते हो, वो तुम्हें फीडबैक भी नहीं देते. वो बोलते हैं यार मैं सबको कहां से फीडबैक दूं. लेकिन उन 400 में से 5 बच्चे हैं जिन्होंने एक असाइनमेंट बना के दिया, वो बोलेंगे यार इस बच्चे ने मेहनत की, इसको तो फीडबैक देना चाहिए कि इसने तूने यहां गलती की. तो दैट इज हाउ यू इंप्रूव. सो स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कि यार कि मैं कैसे सोचता हूं. दैट इज द वे यू थिंक एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू शोकेस टू द इंटरव्यूअर, दैट आई एम अ बेटर थिंकर, दैट्स व्हाई यू शुड हायर मी. राइट. एंड there is no need of doing an MBA for it, there is no need of getting into tech for it. हाँ, अब तो मुझे बोलेगा यार कि भैया टेक कहां पे जरूरत होता है यार. अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है. अब जैसे तेरे को गूगल के किसी मशीन लर्निंग प्रोडक्ट के पे काम करना है, तो तब तो तेरे को टेक आना चाहिए यार, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही वैसी है. उसी तरह अगर तू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे काम कर रहा है, जो वैक्सीन बना रही है, और वहां तू पीएम है, तो तू, तेरे को बायोलॉजी बैकग्राउंड से होगा तो तेरे लिए फायदा होगा. लेकिन वो तेरा फंडामेंटल प्रीमाइस नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि
वो तेरे लिए नीडेड है, वो इंडस्ट्री के लिए नीडेड है, लेकिन एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू ओनली नीड टू बी अ बेटर थिंकर, दैट्स इट. सो दिस थॉट इज नलिफाइड. No degree is needed to become a better product manager, only your thinking abilities. Degrees just enhance that. That's it. Yeah. Okay. So that was a very elaborate answer, and this was something that was needed by a lot of people. तो मैं भी जाके बोल दूंगा कि यार वो वीडियो है देख लो, अगर किसी को प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट एनालिस्ट का कुछ भी पूछना है तो. And there is one thing like now companies, like if I talk about some of the very good brands, they have started hiring directly from different BTech colleges that I've already mentioned. Okay, there are companies like Sprinkler who go visits colleges, companies like Flipkart, companies like Innovation. So they visit colleges to hire BTech graduates, and their criteria, like generally in all the podcasts that I have with software people, so I generally try to make it clear कि यार तुम्हें इंटरव्यू में आंसर कैसे करना है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछते हैं. So what I have got to know from different people is कि इंटरव्यू में ना जो इंटरव्यूअर्स हैं, there are basically 2-3 things. Firstly, they'll ask you some guesstimate questions. Then they'll ask you some either a particular case study and they'll ask you to solve, and or they can have a product revamp case, like if some product is there, how you will improve it, or maybe like somebody, I was talking with somebody told like how you can improve WhatsApp for elderly people. This was asked to him in the product analyst interview. So how you should how we should structure these answers and how we can like make it look ki ha we are a good candidate for their role. Sure. यार देखो, फंडामेंटली कोई भी केस स्टडी है, जो कोई भी ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी ओपन एंडेड प्रॉब्लम के साथ ना एक हाइपोथेसिस आता है कि यार कि मैं क्या सॉल्व करने की जरूरत. प्रॉब्लम क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे स्ट्रेट अवे जंप टू सॉल्यूशंस कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. किसी भी प्रोडक्ट, जैसे मैं इसको ना बहुत सिंपली समझाने की कोशिश, तू एक दुकान खोलता है, ठीक है, तेरा सवाल है मेरे को दुकान को बेटर कैसे बनाना है कि आई कैन ब्रिंग मोर सेल्स इनटू द शॉप. What will your father do or what will you do? You will first order inventory. बोलोगे ये जो इन्वेंट्री है ये डिमांड में है, जनता को साबुन खरीदनी है, साबुन तो सब खरीदते हैं तो मैं साबुन ले आता हूं, ठीक है. अब तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि तुम अचानक से ट्रंक्स खरीदने लग जाओगे, क्योंकि ट्रंक तो जरूरी नहीं है जनता खरीदती है, दुकान पे तो नहीं बिकते, राइट, वो तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक दुकानें होती हैं. तो तुम सबसे पहले ये हाइपोथेसिस डिजाइन करते हो कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है. जैसे मैं वही बोल रहा हूं, तुमने क्या बोला, एक दुकान मैंने खोली, दुकान मैंने मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पे मैंने क्या सोचा कि मेरे पूरे 5 किलोमीटर के विसिनिटी में कोई मिठाई की दुकान नहीं है, सबको मिठाई खरीदनी है, तो यार इसकी डिमांड होगी. तो तुमने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाया कि basically there is the demand of sweets in my vicinity. So first is hypothesis creation. That's how you first. Then you see इस hypothesis को solve करने के लिए मेरे को कौन सी problems को address करना पड़ेगा जो उस cloud के अंदर fall करती है कि हाँ यार मिठाई की तो डिमांड है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है. कि एक होगा कि पेरिशेबल मिठाई है जो मैं एक दिन में ही बेच सकता हूं, खराब हो जाएगी. दूसरी मिठाई है कि अरे यार ये 10 दिन तक रह सकती है लेकिन इसकी इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है. लड्डू शायद रोज खरीदते हैं लेकिन छेना पोड़ा नहीं खरीदते, ठीक है. तो उस तरह तुम प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हो उसको कि हाँ यार इस हाइपोथेसिस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या फॉल करती हैं जिनको मैं सॉल्व करूंगा. फिर उन प्रॉब्लम्स को तुम करते हो प्रायोरिटाइज कि यार इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है. तुम बोलते हो यार सबसे ज्यादा डिमांड लड्डू की है तो मुझे लड्डू को सबसे सामने रखना चाहिए, ये लोगों को सामने दिखना चाहिए क्योंकि लोग खरीदेंगे. तो तुमने उसको प्रायोरिटाइज किया, अगेन वैल्यू आ गई ना कि लोगों को दिखा. और फिर फाइनली क्या करते हो, वैल्यू के बाद तुम जाते हो कि अब किसी भी दुकान को चलने के, किसी भी प्रोडक्ट को चलने के लिए तुम्हें इवेंचुअली मेट्रिक्स देखने पड़ते हैं. मेट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि मैं सक्सेस कैसे मेजर करूंगा. अगर मैं तेरे को आके बोलूं यार कि मैंने तो दुकान शुरू कर दी और बड़ी सही चल रही है यार, तो तू पूछेगा यार कि श्रवण भैया लेकिन बड़ी सही का क्या मतलब होता है, बड़ी सही आप नहीं यार काफी लोग खरीद रहे हैं. मैं बोलूंगा अरे लेकिन मतलब क्या है उसका. अगर तू ये बोलेगा नहीं यार मैं 1 लाख रुपए की सामान ला रहा हूं और मैं इफेक्टिवली उसको 1.5 लाख रुपए में बेच पा रहा हूं, तो हाँ भैया बहुत सही चल रही है, आप 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो दिन का. तो यानी कि वो एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट हो गया उसका. सिमिलरली हम प्रोडक्ट में भी मेट्रिक्स इसीलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट की सक्सेस को मेजर कर सकें. तो टिपिकली किसी भी केस को तुम्हें सॉल्व करना है, पहले तुम्हें सोचना है कि अरे यार अगर मुझे व्हाट्सएप इंप्रूव करना है तो सबसे पहले मेरी ऑडियंस कौन है, उसके लिए मुझे क्या सॉल्व करना है. जैसे एल्डरली पीपल के लिए एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो टाइप ढंग से नहीं कर पाते, क्या मुझे उनके लिए कीज बड़ी करनी चाहिए so that they can write, क्या मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए. लेकिन ये किस हाइपोथेसिस के अंदर आता है, मैसेज क्रिएशन के अंदर कि कैन आई इंप्रूव मैसेज क्रिएशन एज अ सर्विस.
बेटर। और उसके अंदर तुम क्या हो सकता है, कीपैड को इंप्रूव कर दो, वॉइस मॉड्यूलेशन को इंप्रूव कर दो। जब तुमने ये किया उसके बाद तुमने प्रायोरिटाइज किया कि अरे यार टाइप तो करना तो तब भी प्रॉब्लम है, बात शायद वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो तुमने कहा कि यार चलो मैं जो छोटा सा बटन है वॉइस का उसको मैं बड़ा बना देता हूं इस ऑडियंस के लिए, बंदा क्लिक कर लेगा और बात कर लेगा। अब फिर पूछे कि यार अच्छा ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो सक्सेसफुल कैसे हुआ कि तुम्हें ये देखना है कि अरे यार मेरा जो एवरेज यूजर जो व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये डेटा तो है मेरे पास कि एवरेज कितना टाइम स्पेंड करता है, उसमें से इस एज ग्रुप का यूजर कितने वॉइस मैसेज भेज रहा है। पहले अगर 5 भेज रहा था, आज अगर 15 भेज रहा है, तो तुम्हारा फीचर अच्छा काम कर रहा है। तो तुमने एक हाइपोथेसिस डिजाइन किया, तुमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, तुमने प्रायोरिटाइज किया, उसको मेजर करने का तरीका निकाला। ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें फॉलो करना है किसी भी चीज के लिए। और इसी तरह अगर तुम किसी केस को सॉल्व करोगे ना, तो बंदे को फिर तुम एज केस भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ यार हो सकता है कि ये इंडिया के लिए बहुत काम करे, लेकिन अगर मुझे चाइना में जाना पड़ेगा तो शायद मुझे थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की ऑडियंस शायद कीपैड अच्छे से यूज कर पाती है, क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर, राइट, दे हैव अ डिफरेंट वे। और जैसे कि तू ये बोल सकता है कि अरे यार रशिया में इंग्लिश कीपैड काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ रशियन नहीं बोलते हैं, तो तुम कुछ एज केसेस डिफाइन करते हो। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही है, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम्स, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड देन मैट्रिक्स, कि यार उन सॉल्यूशंस को मेजर करने का तरीका। टिपिकली लोग गलती कहां करते हैं, हाइपोथेसिस डिजाइन नहीं करते बहुत जल्दी कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, और मैट्रिक्स को भूल जाते हैं कि यार कि मैं इसको सक्सेसफुल कैसे बनाऊं, क्योंकि एंड में बोलते हैं सर मेरा तो ये सोल्यूशन है कि हम एक वॉइस वाला नोट डाल देंगे। तो अगला बंदा तुझसे पूछता है ठीक है डालेंगे तो भाई, लेकिन होगा क्या उससे? तो दैट इज, if you do this way, I think most interviews you will be able to crack, but it will come with time. It's not like for every solution you will be able to use this process, use this method. It comes with time, slowly and steadily जब तुम करोगे. This is the typical method that you should address to. Yeah. So I hope this will also clear how to prepare for the interviews of product analyst or product manager. There's one more thing when we talk about product management. So there are different, I would say, categories of product management. For example, a person is a product manager in OTT platforms. A person is a product manager in EdTech. A person is a product manager in some other field. So how should a person decide like which thing is suitable for him, or he should go for which particular product management, whether like he's very fond of using such OTT platforms like Netflix, Hotstar. So he wants to grow as a PM in this particular field. So how should a person decide? And like, so that means that if the roles are different, so the task that they perform will also be different in all these roles, in all these industries. So what should be the thought process before deciding upon like which all companies, if he wants to target for a product manager role, how he should think upon that? Sure. यार आई थिंक ये कंपनी से ज्यादा तुम्हारे पैशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टिपिकली क्या होता है कि मैंने तुम्हें बोला कि प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां से आती है, मतलब यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि यार मैं एक प्रॉब्लम को ही कैसे आइडेंटिफाई करूं। वो भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, कि मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता ना, कि मैं बोलूंगा यार कि मैं अच्छी सीट बेल्ट बना रहा हूं, क्या सीट बेल्ट में प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, तो उसको क्यों सॉल्व करोगे भाई तुम? तो तुम ये टिपिकली देखते हो कि इट कम्स फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ कंपैशन फनल। इस चीज को मैं कंपैशन फनल बोलता हूँ कि टिपिकली तुम प्रॉब्लम्स तब आइडेंटिफाई करते हो जब तुम अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे होते हो ना, लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। जैसे अगर तुम एक एविड नेटफ्लिक्स यूजर हो, ठीक है, और तुम क्या सोचते हो यार कि यार लेकिन तुम एक तेलुगु स्पीकर हो, ठीक है, तो तुम हमेशा सोचते हो यार कि मैं तेलुगु, काश मेरे पास एक तेलुगु फिल्टर होता। काफी लोग ढूंढते, मेरे पापा भी ढूंढ रहे हैं, मेरी मम्मी भी ढूंढ रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहा। तो यार ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कंपैशन है ना लोगों के लिए कि यार काश मैं इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता, ये तुम्हारे पैशन में क्रिएट हो जाता है। कि यार टिपिकली तुम देखते हो एडटेक की जो पीएम्स होते हैं ना एडटेक के, वो पता किस बैकग्राउंड से आते हैं, कि वो कोटा गए होते हैं। बोलते हैं यार हमने कोटा में पढ़ाई की थी यार, लेकिन मजा नहीं आ रहा था यार, काश हम एजुकेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या किसी पब्लिक स्कूल से पढ़े होते हैं, जैसे बाइजू है, बाइजू खुद एक केरला के एक छोटे से स्कूल से पढ़ा है, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि यार कि एजुकेशन कितना बड़ा मार्केट है। तो टिपिकली जो तुम्हारा ये पैशन आता है ना, ये हमेशा कंपैशन से आता है कि मैं दुनिया में देख रहा हूं और देख रहा हूं मुझे कौन सी प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, अब जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर जाती है, फिर तुम उस तरह की प्रॉब्लम्स को बोल सकते हो कि हाँ यार ये मुझे लगता है ये बड़ी चीजें हैं, तो मैं इन तरह की कंपनीज में जाना चाहता हूँ। और जब उन तरह की कंपनीज में तुम्हें जाना है, तब तुम उसके लिए एफर्ट डालते हो। मैं जैसे तुम बोलते हो कि यार इनके रोल्स वेरी करते हैं, देयर प्रोडक्ट्स में वेरी, बट देयर थिंकिंग विल नॉट। There's a fundamental thought, there's a fundamental statement I made. प्रोडक्ट्स में वेरी। जैसे मैं तेरे को दोनों की एग्जांपल देता हूं। एजुकेशन के लिए अगर मैं एक फिल्टर एक
पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज के लिए बना देता हूं, क्या वो पूरे इंडिया के लिए सॉल्व करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक नेटिव लैंग्वेज। उसी तरह अगर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म में मैं तेलुगु का फिल्टर डाल देता हूं, वो तो उनके पूरे बेस को सॉल्व ही नहीं करता, है ना? तो फंडामेंटली तुझे क्या सोचना है कि मेरे ओवरऑल बेस को वैल्यू मिलनी चाहिए। वो तो सेम है ना दोनों जगह, बस आउटकम्स अलग अलग है। एक जगह तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म को इंप्रूव कर रहे हो, एक जगह तुम एजुकेशन के प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर ही होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब तुम्हें काम कहां करना है वो तुम्हारे पैशन पे है। यार कि मुझे अच्छा लगता है यार कि कैन आई सिंप्लीफाई लैंग्वेज लर्निंग, कैन आई सिंप्लीफाई ईमेल सेंडिंग, कैन आई सिंप्लीफाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और टिपिकली पीएम्स को ये देखना चाहिए जहां वो पैशनेट है। पीएम एक ऐसा फील्ड नहीं है जहां तुम नई टेक्नोलॉजीज को लर्न करते करते बोलोगे यार कि चलो यार मैं जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहा हूं, चाहे मेरा कोड कुछ भी हो, मैं फिर भी नया फ्रेमवर्क सीख रहा हूं ना, तो आई एम लर्निंग, राइट? प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किसी भी हमेशा एक पीएम तभी टिक सकता है जब वो उस प्रॉब्लम में बिलीव करता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट लाएगी। इट्स अ इंपैक्ट ड्रिवन रोल। जैसे मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूं कि एजुकेशन इंडिया में रेडिकलाइज कर सकती है लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट स्किल्स को। आई स्टिल फील देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। जितने इंजीनियर्स आते हैं और जितनी नौकरियां हैं उनमें बहुत सिग्निफिकेंट गैप है, राइट? तो मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस, दैट्स व्हाई आई नो कि इट विल टेक 10 years ऑफ माय लाइफ टू काइंड ऑफ डू दिस, मे बी मोर, राइट? सो दैट इज द पैशन दैट इट ब्रिंग्स अक्रॉस। अगर तुम पैशनेट नहीं हो ना, फिर तुम किसी भी जगह जाओ यार, तुम बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तुम बोलोगे यार मैं बना रहा हूं, क्योंकि तुम उसको ट्रांजैक्शनल प्रोसेस की तरह लेके चल रहे हो। तो अच्छे पीएम को हमेशा ये सोचना चाहिए कि यार कि मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज द थिंग दैट आई बिलीव, व्हाट आई लाइक, एंड आल्सो हैव सीन अराउंड मी दैट पीपल आल्सो वांट दिस, राइट? दिस विल इंप्रूव देयर लाइफ इन सम वे। फंडामेंटली तुम क्या कर रहे हो यार? तुम लोगों को खुश कर रहे हो। अगर आज की डेट में आईआरसीटीसी नहीं होता तो तेरे पापा को आज भी सुबह उठ के 4 बजे लाइन में लगना पड़ता और टिकट लेनी पड़ती। लेकिन आईआरसीटीसी आया, चाहे उसका यूएक्स कितना ही खराब है, उन्होंने वो प्रोसेस को 10 मिनट में कर दिया। तो योर फादर इज हैप्पी, स्लाइटली हैप्पी। ही माइट नॉट रियलाइज इट, बट लेट्स टेक हिम बैक 15 years। वो सिरदर्द हो जाएगा उनको। वो बोलेंगे भाई मैं क्यों कर रहा हूं लाइफ में, मैं 3 घंटे क्यों बर्बाद कर रहा हूं? तो आज वो उसको लेके चलते हैं। तो दैट इज व्हाई आई से कि अच्छा पीएम बनने के लिए तुम्हें पहले पैशनेट होना पड़ेगा किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एंड देन चूज अ कंपनी कि यार ये हेल्थ केयर में सॉल्व कर रही है, आई शुड अप्लाई हियर, एंड दैट इज। और क्योंकि तुम पैशनेट होगे ना, तब तुम इनोवेशन भी कर पाओगे। अगर तुम पैशनेट नहीं हो ना, तुम कभी भी इनोवेटिव सोल्यूशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम सोच ही नहीं, क्यों जीते जागते तुम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। कौन से बच्चे अच्छे होते हैं? तुमने भी कॉलेज में देखा होगा कि जो बच्चे कोडिंग में अच्छे हो जाते हैं ना, वो ऑल द टाइम कोडिंग के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मैंने ये अभी कोड शेफ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और ये बड़ा ही तगड़ा प्रॉब्लम था। तो उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो पैशनेट है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी वैसा ही फील्ड है। जब तक वो तुम्हें प्रॉब्लम सोने नहीं देती, तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा उस चीज में। तो तुम्हें वैसी प्रॉब्लम ढूंढनी है, एंड देन अप्लाई टू कंपनीज। दैट्स माय 2 bits ऑन हाउ टू चूज अ कंपनी। या So I believe this was one of the amazing conversations that I had, like entire product management we have defined, and basically for freshers who are looking forward to break into such field, how to prepare for interviews, how to look forward for such roles, how to apply, send your resume. So everything we have discussed, and now I would want one final piece of advice from your end to anybody who is looking forward to such roles, like people in their second year, third year, like they have a lot of confusion. So one final piece of advice from your end, and you have also started one new channel to help people. I'll give the link of your channel in the description below. People will go and check out what all things you have been putting, and they can get a lot of yarn related to product management and how to break into such field. Sure. Yeah, I think the fundamental thing that I've kept spoken about is curious रहो यार, अपने आप को कंस्ट्रेंट मत करो, हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस विद पीपल। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां पे तुम जितने लोगों से बात करते हो तुम उतना सीखते हो। काफी इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करो, अपने ऑब्जर्व करना शुरू करो, और किताबें पढ़ो, बहुत सारी चीजें करो। और फंडामेंटली क्या करो, कोई भी प्रॉब्लम अच्छी लगती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट जस्ट सिट ऑन इट कि यार मैं किसी एमबीए कॉलेज में जाऊंगा और तब मैं करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, अभी से करो। तुम्हें छोटा लगता है, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता यार कि जब तक वो 10 मिलियन का हो जाए। स्टार्टअप वो भी होता है जो तुम अपने किचन से चला रहे हो, वो भी स्टार्टअप है, क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो वो करना शुरू करो, अच्छे लोगों से बात करो। यू आर ऑलमोस्ट एज गुड एज योर पीयर ग्रुप। Be with great people in life. They will help you learn faster, and that's the fastest way to learn. Trust me, किताबों से, पॉडकास्ट से, किसी भी चीज से अच्छा होता है लोगों से बात करना। जैसे मैं तुझसे भी बात कर रहा हूं, I'm learning a lot of things from you also, and probably you are also doing the same thing, right? तो वो एक चीज करने रहो। सेकंड चीज I would say कि यार
प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ फील्ड से डरो मत यार, मतलब इट इज नॉट समथिंग, डोंट कीप बायसेस इन योर हेड. तो उसी के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ. इट्स अ छोटा सा एफर्ट है. आई स्टार्टेड दिस चैनल कॉल्ड द स्वैग वाला पीएम व्हिच आई थिंक अर्श हैज, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे एक लाइव सेशन करूं जहां पे मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों को सिंप्लीफाई करूं और तुम सबको ये बताने की कोशिश करूं कि जब मैं कर सकता हूं तो तुम सब तो मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो, बिकॉज एज यू प्रोग्रेस इन एज योर क्रिएटिविटी डिमिनिशेस. तो तुम तो अभी उस स्टेज में हो कि तुम उतना कुछ कर सकते हो, शायद मैं भी नहीं कर सकता कभी. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जस्ट work in it, and that's how you will make a better India. That's how you will make better products in life, and that is how you will make people happy in life. So put that investment. Do subscribe to Arsh's channel and my channel. And that will be lovely for all of you guys to do. And thank you very much, Arsh. I think that's the last thing that I would want to say. Yeah. Thank you so much once again, sir, for coming here and sharing your journey and motivating the people on my channel to pursue such roles and clearing all the doubts and confusions that they generally have regarding product management and product analysts. Thank you so much once again. I hope you like this amazing conversation and it has given you some clarity on how you should prepare for PM roles if you are a fresher, and what all things that you need to know for sitting in a PM interview. So this episode is very beneficial for somebody who's looking forward to such roles. Thank you so much, Shravan, once again. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe this channel, share it with your friends for more such amazing content coming ahead.